we can begin. Array list. What is this array list? Some properties of array list. Underlying data structure of array list is resizable or growable. Insertion order is preserved. Duplicates are allowed. Heterogeneous objects are allowed. Null insertion is possible. And three constructors we use to create the object of array list. So there is some formula. Based on that formula, array list size will when the max size going to fill, so the size will increase based on this formula. So, and I've given one example how we can add the heterogeneous element in the array list. Heterogeneous means different types of object. For example, इसमें string add किया है इन्होंने and they have added the integer, character, null, character, integer. And apart from it, they have used some remove method as well. So we can see this. We try to understand how things are working. Okay. So when I see this, I've given one question to you guys. How it is printing. Like I mean, when we were printing this, जब हम array list को print करा रहे हैं यहाँ पे, तो internally it is using the toString method to print the content of the object. Okay. Internally क्या कर रहा है array list toString को use कर रहा है to print the content of it. Okay. In a same way, I have used here. I just try to check like, I mean, let me remove this. Directly I was passing here. Duplicate I have checked. Yes, it is here. Storing the duplicate. And I mean, integer value we are able to add. So this is just kind of raw type of array list. Okay. इसमें किसी भी type का आप element इसमें add कर सकते हो. Okay. But you guys, you can look at this warnings, lot of warnings you would able to see. इसमें ये क्या बोल रहा है? It is telling कि आपका जो array list है वो raw type का है. It is raw. मतलब किसी भी type की value add कर सकते हो. A reference to generic type array list E should be parameterized. तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमें हमेशा I mean it's recommending कि हमें इसको generic बनाना चाहिए. Before that, let me tell you. For example, let me clear method मैं अभी use नहीं कर रहा हूँ. I'm not using the clear method here. I'm just printing it. So अभी मैं ये element देख पा रहा हूँ. Okay. Now what I'm doing, array list dot remove. और जो भी मैं इसमें इंडेक्स पास करूंगा या मैं इसमें ऑब्जेक्ट पास करूंगा, रिमूव अपने आप में कितने मेथड है? 2 मेथड है. आप इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हो. ओके. or you can remove by passing the object as well. So let me use the object I am passing. Object क्या है मेरे पास? Fazol. Okay. तो duplicate है. I'm just removing it. Okay. अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 times काजुल आ रहा है. Okay. I'm able to see 2 times काजुल आ रहा है. Now I have removed it, and let me come down. After remove, let me print once again. Array list. Okay. So let me run it. See, I have removed it. Okay. Sir, if you want to list that clear, sir, then whole things are clear. Whole remove. thing. We have seen it is whole things are going to clear. And now इसमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो. ओके. किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड, इसमें अगर आप देखोगे डॉट ऐड हाउ मेनी मेथड ऑफ ऐड? ओवरलोडेड मेथड है with 1 parameter, with 2 parameter, with collection type parameter, index and collection type parameters. 4 methods of no, these are the add all, but add 2 methods are here. Okay. So 2 methods add. मैं directly value add कर सकता हूँ. किसी particular index पे भी मैं value add कर सकता हूँ. For example,
I want to add on this I want to add on one index. Okay, and here just I'm putting some one index पे मुझे अभी 0 1 पे 10 है अभी, राइट। आई थिंक आई हैव रिमूव्ड, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो एट दिस प्लेस दिस दिनेश शुड ऐड। लेट मी ट्राई टू रन इट। So I can like add and check the on which index this is going to add. Okay, see, तो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, किसी इंडेक्स से मैं इसको पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, आई कैन रिमूव। सो लॉट ऑफ मेथड्स इट कंटेन। ओके, lot of methods it contain. Share this program with you. So do the practice one by one, almost all the methods. Okay, and try to understand the functionality of it. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो रॉ आपको ये बनाने का, टू मेकिंग द रॉ ऑफ रॉ टाइप का लेने का बेनिफिट नहीं है। ओके, सो ओके, सो लेट मी कम टू हियर। So now in every collection class to string is overridden to return the content। तो ये हम देख चुके हैं कि इसमें हर एक कलेक्शन में आप उसको डायरेक्ट प्रिंट कर पाओगे उसकी कंटेंट, बिकॉज इट हैज ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड। डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली वन ऑफ क्लास हैज ओवररिटन दिस। यूजली वी कैन यूज कलेक्शन टू स्टोर एंड ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो जनरली हम कलेक्शन किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए या ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए। To provide support for this requirement, every collection implement serializable and clonable. So I mean, it is implementing the two interface as well. So let me tell you one more thing here. This is not a good practice. This is not a good practice at all. Let me tell you. uh, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, array list demo just I'm creating, और let me add their स्टूडेंट टाइप के मैं ऑब्जेक्ट इसमें प्रॉपरली ऐड करता हूँ। ओके, व्हाट आई एम डूइंग, स्टूडेंट टाइप ऑफ एरे, not the student type of array. I'll come on student type as well. Okay, so first of all let me tell you iterate कैसे करेंगे, how we can iterate guys। कलेक्शन को हम एरे लिस्ट को इटरेट करने का लगभग लगभग लॉजिक आप देखोगे सबका कॉमन ही है। सो आई मीन देयर आर थ्री वे टू इटरेट इट। सो लेट मी टेल यू हाउ वी कैन डू दैट। तो पहले मैं इसमें कुछ एलिमेंट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एरे लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ से मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, बट द प्रॉब्लम अभी ये वार्निंग दे रहा है, तो मैं इसको किस टाइप के एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, सम स्ट्रिंग टाइप ऑफ एलिमेंट आई वांट टू ऐड। ओके, अब ये ऑप्शनल है, यहाँ मैं अकेला एंगुलर ब्रैकेट भी रख सकता हूँ और इसके अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, now I'm adding the value here, list dot add, and I am putting here Azul, one element I have added. Okay, list dot add, and I am putting here and the name list dot add. I'm going to add here. I'm going to add here ln and list dot add. I'm certain. Okay, list dot add. I'm before list dot add. I'm Pradeep. 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 List dot add. I'm Pra
some element I have added. Okay, and okay, so अगर मैं ये सारे एलिमेंट को एक साथ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, so I can print like this. Okay, जस्ट अगर मैं वेरीफाई कर रहा हूँ लिस्ट टाइम जस्ट प्रिंटिंग, ये टू स्ट्रिंग की वजह से सबको यहाँ पे प्रिंट कर देगा. ओके, दिस इज गोइंग टू प्रिंट दी ऑल. इफ यू विल सी इन दिस कि इसमें आपका नल इंसर्शन तो ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, एवरीथिंग इट विल डू. बट व्हाट आई वांट हियर कि ये सिस आउट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इसमें आप कुछ ऑपरेशन तो कर नहीं सकते. होल डेटा यू आर एबल टू सी बाय यूजिंग द टू स्ट्रिंग. ओके, तो इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आई वांट टू इटरेट इट वन बाय वन. मैं एक एक करके इस एलिमेंट को इटरेट करता हूँ. ठीक है, वन बाय वन, वो भी लूप के थ्रू. ओके, सो लेट मी ट्राई टू इटरेट थ्रू दी लूप. ओके, लूप के थ्रू मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कि हाउ आई कैन इटरेट थ्रू दी लूप. तो अगर नॉर्मल मुझे फॉर लूप से करना है तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट size. Okay, so let me tell you one thing. uh, okay, you would confuse here. अगर मैं list dot size करता हूँ int s इक्वल टू list dot size, तो ये साइज क्या देगा? what size it will give guys? अगर मैं यहाँ पे इसका इस array list का साइज निकालना चाहूँ तो what size it will give? डिफॉल्ट साइज तो इसका 10 होता है, 10 होता है, लेकिन ये साइज उतना ही देगा जितने एलिमेंट आपने इसमें ऐड किए हुए हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. लेट मी ट्राई टू प्रिंट हियर एस. तो ये उतना ही साइज देगा जितने एलिमेंट आपने यहाँ पे इसमें ऐड किए हैं. टोटल हाउ मेनी एलिमेंट वी हैव एडेड? 6. ओके, सो रिमेंबर दिस. तो इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से. और साइज कहाँ से काउंट करेगा? 1 से. तो इसलिए मुझे इसे एक कम तक चलाना होगा. ठीक है गाइस, सो आई वांट टू जस्ट मेक इट प्रिंट. ओके, अब मुझे एक एक करके इसको इटरेट कराना. तो हाउ आई कैन iterate it? So how I can iterate it? list dot get मेथड होता है इसके अंदर, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं इंडेक्स. तो 0 इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, फिर से ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन लिस्ट ऑफ साइज, कंडीशन ट्रू है, फिर आके 1 का इंडेक्स प्रिंट कर देगा. इस तरीके से क्या करेगा? ऑल 1 बाय 1 ये सबको क्या कर देगा? यहाँ पर प्रिंट कर देगा. ओके, इटरेटर से तो करा सकते हैं ना. हाँ, अभी आते हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं. ओके, तो दिस इज अ नॉर्मल फॉर लूप थ्रू विच वी आर एबल टू डू. ओके, एंड लेट मी पुट हियर iterator step 1. okay, so just I'm using step 1. okay, सेकेंड तरीका हम देखते हैं यहाँ पे. द सेकेंड वे वी आर गोइंग टू सी iterator step 2. और हम लोग कैसे इटरेट कर सकते हैं? हाउ वी कैन इटरेट इट? तो हम लोग इटरेटर के थ्रू करते हैं. ओके, दिस इज अ नॉर्मल वे टू इटरेट इट. ओके, लूप के थ्रू हमें इटरेट करना है. ओके, द सेकंड वे क्या है यहाँ पे? इसके अंदर इटरेटर का भी कर सकते हैं, लेकिन इटरेटर से इटरेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वी डू हैव द इटरेटर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए. इटरेटर itr इज इक्वल टू लिस्ट डॉट इटरेटर. ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ. सो ये इटरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे? ये लिस्ट इटरेटर मेथड है, ये ऑब्जेक्ट दे रहा है किसका? इटरेटर का. इसको मैं यहाँ पर जेनरिक बना लेता. ओके, सो इटरेटर का ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन इटरेटर अपने आप में क्या है गाइस? इटरेटर क्या है यहाँ पे? इंटरफेस. तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है.
तो ये ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा होगा इसको ITR के अंदर? इट इज गेटिंग द ऑब्जेक्ट of the class which implementing this interface. So generally कोई क्लास अगर किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है उसका अगर ऑब्जेक्ट हम निकालते हैं और इटरेट और इंटरफेस के रेफरेंस में रखते हैं तो जनरली हम लोग इन स्पीकिंग टर्म वी टेल कि ये इटरेटर का ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से मिल जाएगा. इटरेटर मेथड इज गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ इटरेटर. ओके, तो एक तरीका तो क्या होता था, इटरेटर ITR इज इक्वल टू और न्यू करके फिर जो इसकी क्लास होती है उसमें ऐसे कर सकते थे हम लोग. But generally how we are getting the object of it by calling the method of iterator of the list class. Yes guys. Sir, when we print this object in the system.out.println, then it's print in like as array. When we pass it in the for loop, that is print like as Anyway, just first focus, then I'll come to your question. Okay, पहले इस पे focus करते हैं हम लोग. Iterator ITR is equal to list dot iterator. Okay, तो now what I want कि मैं इसको है ना I just want to iterate it. How I can do that? While iterator के अंदर दो मेथड होते हैं. Okay, ITR dot हैज नेक्स्ट. गाइस, हैज नेक्स्ट का अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, अगर इसमें एलिमेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. बुलियन इसका टाइप है, राइट, बुलियन टाइप है इसका, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. तो जब इसके अंदर अगर एलिमेंट है तो दिस इज गोइंग टू द रिटर्न ट्रू. अगर उस एलिमेंट को मुझे प्रिंट कराना है तो ITR डॉट नेक्स्ट. नेक्स्ट मेथड मुझे उस ऑब्जेक्ट को दे देगा. ओके, नेक्स्ट मेथड विल गिव द ऑब्जेक्ट ऑफ इट. ओके, सो यहाँ पे मैं लॉगिंग कर देता हूँ. ओके, iterate the array list using iterator. Okay, so just what I am doing here कि मैं iterator का use करके just I am iterating the element one by one. Okay, so how I am able to do same thing. Okay, same I am able to do now by using the for loop, and same I am able to do by using the iterator. Okay, so iterator का concept समझने के लिए, to understand the concept of iterator, we should know कि iterator डायरेक्ट आई मीन हम इसमें यूज नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इटरेटर. जो लिस्ट के अंदर एक इटरेटर मेथड है, दैट इज गिविंग द ऑब्जेक्ट. ओके, दैट इज गिविंग द ऑब्जेक्ट. देन व्हाइल लूप का यूज करके इट हैज टू मेथड. हैज नेक्स्ट विल टेल कि इसमें नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, एंड थ्रू द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट. ओके, तो ये हमने सेकंड अप्रोच देखा. देन वी आर गोइंग टू सी फॉर ईच के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं. ओके, बाय यूजिंग द फॉर ईच. ओके, iterate iterate the array list using for each. सो फॉर ईच का यूज करके हम लोग इटरेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो एलिमेंट को इटरेट करने के सो मेनी वे वी डू हैव. ओके, सो मेनी वे वी डू हैव. ओके, पहला तरीका तो हमने नॉर्मल फॉर लूप से देखा, देन हमने इटरेटर से देखा. ओके, इटरेटर के थ्रू हमने देखा सेकंड अप्रोच. ओके,
and the third approach we are going to see by using the for each. Okay, for each का use करके हम लोग how we can iterate, let's see. सर रिकमेंडेड वे कौन सा है इनमें से? आपको जो भी सुटेबल लगे. ओके, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, सबसे ज़्यादा वैसे बेसिकली हम लोग ये इटरेटर, आई मीन जनरली वी यूज दिस इटरेटर एज वेल, समटाइम्स वी यूज दिस फॉर ईच एज वेल. ओके, तो ये तो हम यूज नहीं करते, दिस वी डिड नॉट यूज. ओके, आइदर हम इटरेटर यूज कर रहे होंगे या फॉर ईच यूज कर रहे होंगे. एक एडवांस फॉर ईच है, उसको जनरली प्रिफर्ड करते हैं जावा 8 का यूज करके, उसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं. तो उस पर जस्ट आई एम कमिंग ऑन दैट. ओके, जो एडवांस है that is advanced for each, so we will come on that. Okay, so ये बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पे, एक स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया और लिस्ट में से ये क्या करेगा, एक एक से एलिमेंट उठाएगा, एसटीआर में डालेगा और एसटीआर को नीचे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा लेते. दिस इज क्वाइट अ सिंपल वे. ओके, इसमें एसटीआर को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा. लिस्ट से एलिमेंट निकालेगा, एसटीआर के अंदर डालेगा, एसटीआर को प्रिंट करा लिया. जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे सबको निकालेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा. बट इसमें ये ध्यान रखना, इस पर कंट्रोल नहीं है हमारा, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल. जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो सबको निकाल देगा. वी कॉल इट फॉर ईच. ओके, सी गाइस, सो इटरेटर अरे लिस्ट यूजिंग फॉर ईच. फॉर ईच के थ्रू भी हम लोग इटरेट कर पा रहे हैं, इटरेटर का यूज करके भी हम लोग इटरेट कर पा रहे हैं, और नॉर्मल फॉर लूप का यूज करके भी हम लोग यूज कर पा रहे हैं. सो लेट मी पुट सम लॉगिंग हियर, तो हम प्रॉपर समझ लेंगे कि ओके, fetch the array list using loop. Okay, using for loop. Okay, for loop. For loop का यूज करके हम we are able to iterate it. Okay, by using the for loop as well, by using the iterator as well, and by using the for each. for each, इसको for each बोलते हैं. अब इसके बाद एक नया जो एडवांस तरीका है जो जावा 1.8 से शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड एडवांस फॉर ईच. ओके, सो एडवांस फॉर ईच, iterate array list using एडवांस फॉर ईच. ओके, एडवांस फॉर ईच का यूज करके और इसको क्या करना, इटरेट करना. ओके, ओके, एडवांस फॉर ईच का यूज करके इसको इटरेट करना. हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन डू दैट, तो लेट्स वी कैन सी. तो इसके लिए हमें बेसिकली है ना जावा 1.8 के कुछ फीचर आने चाहिए, और लैम्डा एक्सप्रेशन आना चाहिए, फंक्शनल इंटरफेस आना चाहिए. तो वो थोड़ा सा आना चाहिए, बट वी विल कम ऑन दैट. ओके, हाउ वी कैन डू, लेट मी टेल यू. तो लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है, ये लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट है बेसिकली. लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट है लिस्ट. तो लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है फॉर ईच, और एक मेथड होता है फॉर ईच नाम से ही. ठीक है, अर्लियर हम इसको फॉर ईच बोलते थे, है ना, लेकिन इन्होंने फॉर ईच एक मेथड ही दे दिया इसके अंदर. ओके, लिस्ट के अंदर एक मेथड है फॉर ईच. ओके, सो फॉर ईच के अंदर चलते हैं, मेथड है क्या, थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानते हैं. तो फॉर ईच मेथड कहाँ है, एरे लिस्ट के अंदर है. ओके, जनरली ये होना चाहिए. अब इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है. इसके अंदर जो आर्गुमेंट है ना, फॉर ईच कुछ रिटर्न तो करता नहीं है. ओके, वॉइड है, बट इसके अंदर जो आर्गुमेंट है ना, ये इसको देख के अभी परेशान नहीं होना. ठीक है, कुछ नहीं है, जेनरिक है. अभी आगे देखेंगे इसको ना, ये क्या चीज है. इसमें अगर देखें हम लोग, तो एक्शन एक वेरिएबल है, और एक्शन का जो टाइप है वो क्या है गाइस, एक बार पढ़ के बताइए आप लोग, क्या टाइप है एक्शन का. एक्शन किस टाइप का वेरिएबल, कंज्यूमर टाइप. कंज्यूमर. अब मैं अगर देखो कंज्यूमर है क्या, क्लास है, इंटरफेस है क्या, तो कंज्यूमर अपने आप में क्या है, एक आई, एक जब आपको समझ जाना, आई से मतलब क्या होता है, इंटरफेस है, इंटरफेस. और इसमें एक एनोटेशन भी लगा हुआ है, @फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा हुआ है. तो एक्चुअल में ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है.
तो ये जावा 1.8 का फीचर है. व्हाट इज दिस फंक्शनल इंटरफेस गाइस? सो फंक्शनल इंटरफेस, functional interface is an interface which is having only one abstract method. तो इसके अंदर एक abstract method होगा, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या मेथड है. ये functional interface है. और functional interface के अब हम इन्होंने क्या लगाया कि एनोटेशन लगाया है @ functional interface, और इसके अंदर एक बाकी ये तो डिफॉल्ट मेथड है बट इट्स ओके. एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही है जिसकी बॉडी नहीं, ओनली डिक्लेयर्ड मेथड है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्ट. ओके, तो ये क्या हो गया आपका कंज्यूमर क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है. और फंक्शनल इंटरफेस का एक्शन क्या हो गया, रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल. तो जावा 8 में क्या चेंज आया है कि जहां भी आपको फंक्शनल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा वहां आप लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकते हो. यू कैन यूज द लैम्डा एक्सप्रेशन. लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कोई एल एलिमेंट निकाला, एरो लगाया, और इसमें यहाँ पे ऐसे मैं बॉडी दूंगा. ये बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन का कोड है. आइदर आई कैन राइट दिस इन वन लाइन. ओके, सो एंड आई कैन प्रिंट हियर, आई कैन प्रिंट हियर एल को मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ. तो आई कैन सी लाइक दिस. ओके, मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस इन वन लाइन. और ओके, सो आई कैन राइट दिस इन वन लाइन, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ. ओके, और मैं इसको आई मीन ब्रेक करके डाउन में भी कर सकता हूँ, तो वो सिंगल लाइन ही कंसिडर होगी. ओके, तो अगर इसको आप देखोगे, इफ यू विल सी दिस, तो ये आपका कौन सा है, यूजिंग एडवांस फॉर ईच का यूज करके मैंने कलेक्शन को क्या किया, यहाँ पे एरे लिस्ट को क्या कर लिया गाइस, यहाँ पे आई जस्ट एरे लिस्ट को क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया. ओके, एडवांस फॉर ईच का यूज करके मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट को क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया. बट ये कोड कैसा है, ये बेसिकली ये लैम्डा एक्सप्रेशन है. ये लैम्डा एक्सप्रेशन जो एक्सेप्ट मेथड अभी इसके अंदर देखा था ना हमने, ये जो एक्सेप्ट मेथड है ना इसके अंदर, ये जो एक्सेप्ट मेथड है ना इसके अंदर, ये वाला एक्सेप्ट मेथड, ये बेसिकली इसकी बॉडी दी है. मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसको मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया. ये कैसे काम कर रहा है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो हाउ मेनी वे वी हैव सीन इट, कितने तरीके हमने देख ली है ना. सो मेनी 4 वे वी हैव सीन इट. ओके, 4 वे वी हैव सीन इट. ओके, 4 वे वी हैव सीन इट. यस, एडवांस फॉर लूप का थोड़ा सा ने फ्लो समझा दी, मतलब कौन सी कहाँ से वेरिएबल कहाँ जा रहा है वो थोड़ा फ्लो अगर बता दें आपको. अभी जस्ट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि हाउ इट्स वर्किंग. ओके, सो एडवांस फॉर ईच बेसिकली है क्या, ये एडवांस जो फॉर ईच है, एडवांस फॉर ईच क्या आपको क्या समझ पड़ रहा है, ये एडवांस फॉर ईच है क्या, व्हाट इज दिस एडवांस फॉर ईच. एडवांस फॉर ईच क्या है, देखने से क्या लग रहा है आपको, क्लास है, मेथड है, वेरिएबल है, मेथड है सर, ये एक मेथड है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और ये क्या है जो मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, मेथड का क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन. नहीं यार, वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर मैं आऊंगा. अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन, हाँ नहीं, अभी मैं आता हूँ, अभी आर्गुमेंट राइट, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे पैरामीटर. क्या हो गया ये, जस्ट पैरामीटर है, दिख रहा है आप लोगों को. जैसे मान लीजिए मैंने अपनी क्लास में यहीं पे मैं कोई यहाँ पे मेथड लिख रहा हूँ, पब्लिक वॉइड m1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1, पब्लिक वॉइड मैंने यहाँ पे कोई m1 मेथड दे दिया, और m1 के अंदर मैं यहाँ पे कोई अगर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग हियर सम स्ट्रिंग हियर, string str I'm taking here and then just I'm putting this सॉरी, ये मुझे मैन के बाहर करना होगा. ये सारी एक्टिविटी, होल एक्टिविटी आई नीड टू डू आफ्टर द मैन. तो ये मान लीजिए मैं अपने मेथड की बॉडी दे रहा हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे str को प्रिंट करा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी आई मीन str को मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया. अब मुझे यहाँ पे अगर ये कॉल करना होगा तो कैसे करूंगा मैं इसको कॉल, एरे लिस्ट डेमो है ना हमारी क्लास का नाम, ये हमारी क्लास का नाम, हमारी मेथड बनाया हुआ है अभी. ठीक है, एज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट डेमो. ओके, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और a डॉट m1 मैंने कॉल किया, और m1 में मैंने मान ली यहाँ पे पास कर दिया
मैंने कुछ हरी नेम पास कर दी, तो हरी को मैंने कॉल किया और ये क्या करेगा, M1 कॉल होगा और str इसमें प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही नहीं है, अगर इसको गौर से देखोगे आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसका कॉल करते समय ये क्या पास किया है हमने, कॉल आर्गुमेंट। करते समय हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया, राइट, इट इज जस्ट काइंड ऑफ आर्गुमेंट। तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं लेकिन इसका कोड कैसा है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, लैम्डा एक्सप्रेशन का हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए। व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन? तो लैम्डा एक्सप्रेशन होती क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 1.8 का फीचर है और ये फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होता है। ओके, फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए we use this lambda expression. Functional interface. Sir, what we are passing the for each method? हम लोग For एक each loop. इम्प्लीमेंटेशन ही दे रहे हैं, जो उसके अंदर एक एक्सेप्ट मेथड है ना, और उस मेथड को जस्ट हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी बॉडी दे रहे हैं, है ना, और ईच के थ्रू क्या दे रहे हैं, हम उसकी बॉडी दे रहे हैं, जो इसके अंदर एक कंज्यूमर टाइप का, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है इस फॉर ईच के अंदर, उसको वो बेसिकली क्या है, वो कंज्यूमर क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। उस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस मेथड की बेसिकली यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, बॉडी दे रहे हैं। वी आर गिविंग द बॉडी ऑफ दैट मेथड, वी आर गिविंग द बॉडी ऑफ दैट मेथड। हाउ वी कैन गिव द बॉडी ऑफ द मेथड? तो इसका सिंटेक्स होता है गाइस। सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट वुड बी द सिंटेक्स हियर, लेट मी टेल यू। लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, एरो सॉरी ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें एरो पुट करेंगे और ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ये लिखें। ये बेसिकली क्या होगा, पैरामीटर ऑफ आई मीन आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट, मेथड की आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट यहाँ पास करेंगे। ये उस मेथड की क्या होगी, बॉडी होगी, और एरो से क्या हो रहा होगा, वो मेथड कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। बट बिफोर दिस नॉर्मल वे हमें थोड़ा सा समझ आना जरूरी है कि इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, तब हम इस पे आते हैं, ठीक है गाइस, देन वी विल कम ऑन दिस। ओके, अभी हमने एक एडवांस देख लिया, आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विथ यू, देन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन किसी भी इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, एनी ऑफ इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, देन वी विल कम ऑन दिस। ओके, लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम, फिर हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे फिर उसको देखेंगे, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम, इनमें से जो भी आपको सुटेबल लग रहा है कि इटरेटर में आपको बेसिकली सारी वे आनी चाहिए, ऑल 4 वे, ये तो फॉर के थ्रू हमने नॉर्मल किया हुआ है, ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर ईच के थ्रू आना चाहिए, इटरेटर के थ्रू आना चाहिए, प्लस एडवांस इटरेटर के थ्रू आना चाहिए। इनमें से आप यूज कौन सा करोगे, जनरली जो एडवांस में अभी जो करंट में आया है ये क्वाइट सिंपल है, एक लाइन में ही सारा कोड हो जाता है। बट इसके पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल इंटरफेस होता क्या है, ठीक है, नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे खुद का एक इंटरफेस बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई इंटरफेस। ओके, सो माई इंटरफेस नाम से मैंने एक इंटरफेस बना लिया, ठीक है, माई इंटरफेस नाम से मैंने एक इंटरफेस बना लिया। और जनरली इंटरफेस क्या कहता है, अगर हमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो इंटरफेस क्या कहता है कि आई मीन यू नो व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन वी शुड गो फॉर इंटरफेस। ये डेफिनेशन जावा 1.7 तक तो ठीक थी, 1.8 से इसमें पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो, किसी दो मेथड की बॉडी भी दे सकते हो और आप मेथड को एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड M1, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बना दिया, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। ये मैंने क्या किया हुआ, मेथड जस्ट आई हैव यू नो डिक्लेयर्ड इट। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिख रहा हूँ। ओके गाइस, ये मेरा एक इंटरफेस है। ओके, दिस इज कॉल्ड, आप बताइए इसके अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गाइस, हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन दिस, वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। तो वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसमें मैं एक एनोटेशन लगा सकता हूँ, @ फंक्शनल इंटरफेस, ये एनोटेशन लगा सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एक से ज्यादा मैं अगर बनाऊंगा ना तो दिस विल गिव मी द एरर M2। अगर मैंने एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया तो ये क्या दे देगा मुझे, एरर। क्यों दे दिया इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया एनोटेशन कि फंक्शनल इंटरफेस है ये मेरा।
फंक्शनल इंटरफेस की कंडीशन क्या है कि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिमूव कर दूंगा, ये एरर हट जाएगी। क्यों हट गई गाइस? एरर क्यों रिमूव होगी? क्योंकि अभी नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके, नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके, नॉर्मल, चाहे हमारा नॉर्मल हो चाहे हमारा फंक्शनल इंटरफेस हो, दोनों को ही देख लेते हैं हम लोग कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब बताइए मुझे, ये जो 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसके कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर? माई इंटरफेस के अंदर हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड गाइस? हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड द माई इंटरफेस? 2. 2. इनकी हम बॉडी, इसकी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इम्प्लीमेंटेशन क्लास। जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों मेथड की क्या देनी है? बॉडी। चलिए मैं यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाता हूँ, ठीक है। माय इंटरफेस IMPL, IMPL का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ये क्लास है मेरी, माय इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अभी अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड लगाना होगा। इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट करूंगा मैं? माय इंटरफेस को। माय इंटरफेस को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर, ये मेरे को दे रहा है कंपाइल टाइम एरर। क्यों दे रहा है कंपाइल टाइम एरर? ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो 2 मेथड हैं आपको उनकी क्या देनी है? यहाँ पे बॉडी देनी है। बॉडी देने का मतलब है ओवरराइड करना। द मीनिंग ऑफ गिविंग द बॉडी ऑफ मेथड मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मीन्स आप उसको ओवरराइड कर रहे हो। तो यहाँ पे मेथड क्या है? पब्लिक वॉइड m1, और मैंने यहाँ पे ऐसी बॉडी दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे बॉडी दे दी m1। ओके, एंड अभी भी कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। अब क्यों दे रहा है गाइस? क्योंकि यहाँ पे मैंने m2 की बॉडी नहीं दी है। ओके, पब्लिक वॉइड और मैंने m2 की बॉडी दे देनी यहाँ पे। ओके, लेकिन सर अगर हमें एक ही मेथड चाहिए तब क्या करेंगे? फिर इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा m2, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी 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 मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इस इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट करेगी उसकी ये बॉडी दे, इसको उसकी बॉडी देनी होगी। अगर ये बॉडी नहीं देती है तो इसको क्या बनाना पड़ जाएगा? हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ जाएगा। ओके, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता नहीं। तो चाहे यहाँ पे इंटरफेस हो चाहे यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी अगर एक्सटेंड करोगे तो उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसकी भी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी चाइल्ड क्लास की हो जाती है। ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने इंटरफेस, पेरेंट इंटरफेस के मेथड जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनकी बॉडी देना, और इनके ऊपर एक एनोटेशन लगा देंगे हम, @ ओवरराइड। ये एनोटेशंस लगाना जरूरी है, आप लगाओगे इट वुड बी द गुड। ये क्यों लगाते हैं हम लोग? क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्या करता है, अगर @ ओवरराइड लगा दिया तो ये इंटरफेस के अंदर जो मेथड का नाम है ना, इससे स्पेलिंग मैच करेगा। अगर स्पेलिंग गलत हुई ना और ओवरराइड किया, जैसे मान लीजिए कोई मेथड का नाम बड़ा है और मैं उसको यहाँ यूज कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में मैंने इसको ओवरराइड कर लिया है, बट अगर मैंने ये एनोटेशन लगाया और मेरे से स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ये मुझे क्या दे देगा? कंपाइल टाइम एरर। ओके, क्योंकि ये 3 मेथड इंटरफेस के अंदर है ही नहीं। तो ये जरूरी है, आपको क्या एनोटेशन लगाना चाहिए? ओवरराइड एनोटेशन लगाना चाहिए। ओके, तो किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है। अब इसमें चाहो तो मैं यहाँ पे मेन लिख लेता हूँ, मेथड आई कैन राइट हियर एंड आई कैन क्रिएट दी। अब ये m1 m2 को कॉल कैसे करूंगा? अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माय इंटरफेस IMPL m इक्वल टू न्यू माय इंटरफेस IMPL। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, m डॉट m1 कॉल कर लूंगा, m डॉट m2 को कॉल कर लूंगा। नाउ आई कैन डू दिस। तो ये एक ट्रेडिशनल वे था कि आप किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से आप इम्प्लीमेंट करोगे गाइस। हाउ यू विल इम्प्लीमेंट? बाय यूजिंग द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ओके, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स का यूज करके आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ये वे हमने देखा, अगर एक से ज्यादा करना। लेकिन जावा 1.8 से स्टोरी चेंज हो गई। उन्होंने ये बोला, अगर आपके पास कोई फंक्शनल इंटरफेस है, अगर आपके पास कोई इंटरफेस है जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देयर इज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप उसकी बॉडी दे सकते हो, बट कंडीशन ये है कि वो आपका क्या होना चाहिए, फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए। ओके गाइस, सो ये तो हम लोगों ने नॉर्मल वे देख लिया। ठीक है, नॉर्मल वे में हम क्या करेंगे, किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑल मेथड्स की हम बॉडी देंगे। ओके, सो वी विल डू दैट। ओके, लेकिन अगर ये फंक्शनल इंटरफेस होता तो आई एम कन्वर्टिंग दिस इन दी फंक्शनल इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं एनोटेशन यूज कर रहा हूँ, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन यूज कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से क्या करना होगा, एक ही मेथड रखना होगा, ये इसकी कंडीशन है, एक ही मेथड रखना होगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से भी मैं हटा दी, ये इम्प्लीमेंट करने की मुझे अब जरूरत नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है मुझे नहीं है। फिर मैं कैसे करूंगा, इसको क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली कैसे, मैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके मैं इसकी बॉडी दे सकता हूँ। हाउ आई कैन गिव दी बॉडी, कैसे मैं बॉडी दे सकता हूँ, तो बताइए इंटरफेस का नाम क्या है गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस का नाम क्या है ये बताइए आप मुझे, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल My इंटरफेस, interface. My interface. तो आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल माय इंटरफेस m इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, एक मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाऊंगा, ओके, फिर मैं यहाँ पे एरो लगाऊंगा, फिर मैं बॉडी लगाऊंगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी दे दूंगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना लास्ट में सेमीकोलन लगता है, और इस बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ M1, ऐसे ही मैंने कुछ मैसेज दे दिया। ठीक है, सर इसकी बॉडी कंपलसरी है, इसमें ये लगाते हैं अपन कर्ली ब्रेसेस से? ये आपका मैंडेटरी, अगर एक ही स्टेटमेंट आपको लिखनी है तो जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा लिख रहे हो तो आप इसको देना जरूरी है। ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसकी नीड नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको मैं कॉल कैसे करूं इस मेथड को, हाउ यू कैन कॉल दिस मेथड, तो उसको देखते हैं। तो अब ये जो m के अंदर हमने इसको रेफरेंस करा लिया, अब m डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे, m1। ठीक, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये वाला m1 ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो मेथड जो लिखा ना, मेथड को कोई नाम तो है नहीं इधर, इसी को बोले अनोनिमस मेथड। तो ये इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में एक्चुअल में पता है मैंने किसका इम्प्लीमेंटेशन दिया, इस m1 का इम्प्लीमेंटेशन दिया। इस मेथड की कोई भी नाम नहीं है इधर, है ना, विदाउट नेम आई हैव टेकन दी मेथड थ्रू द लैम्डा एक्सप्रेशन, and I will run it and I will enjoy the output here। ओके, लेकिन अगर इसको मैं देखूं यहाँ पे कि एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ एज ए पैरामीटर, स्ट्रिंग मैसेज मैंने यहाँ पे पास कर, जैसे मैंने सेव किया इसने एरर दे दी, वो बोल रहे आप तो यहाँ पे 0 पैरामीटर ले रहे हो और आपके पास जो मेथड है वो कौन सा है, पैरामीटर मेथड है। तो यहाँ क्या पास करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान रख, यहाँ मैं टाइप के साथ में ऐसे कीजिए कुछ भी नाम ले सकता हूँ। ठीक है, टाइप भी ले सकता हूँ, टाइप लेने की भी जरूरत नहीं, मैं अकेला मैसेज भी ले सकता हूँ यहाँ पर, ये भी मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। राइट, अब जब मैंने ये लिखा तो मैं ये मैसेज कहाँ से पास करूंगा, यहाँ से पास करूंगा, हाय गुड मॉर्निंग ऑल, मैंने यहाँ से मैसेज पास कर दिया, और अब मैं इस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ये मैसेज को यहाँ मैंने, अब m.m1 कॉल किया, तो m1 के लिए कौन सा ये वाला मेथड है वो m1, बट इसका कोई नाम तो है नहीं, इसी को बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, सो m.m1 कॉल किया, हाय गुड मॉर्निंग ऑल पास किया, तो हाय गुड मॉर्निंग ऑल किसके अंदर चला गया, इस मैसेज के अंदर, और इस मैसेज की बॉडी कहाँ पे, ये रही, इस मैसेज को यहाँ प्रिंट करा लिया। ओके, ये m1 कॉल कैसे किया है, इस माय इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल से। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये मैजिक हो कैसे रहा है, ये कैसे पता लग रहा है इसको कि ये m.m1 कॉल कर ले रहा है, क्योंकि आप देखिए ना माय इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है, एक ही मेथड है।
तो m.m1 कॉल किया, हाई गुड मॉर्निंग ऑल मैसेज पास किया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है, यहाँ पे इसको ये प्रिंट कर देगा। वी विल सी ये क्या है गाइस, दिस इज नथिंग कॉल्ड द इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन। फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन मैंने कैसे दिया हुआ है, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके मैंने दिया हुआ है ये बेसिकली। सर इसमें दो मेथड हो तो फिर इसको फंक्शनल इंटरफेस नहीं बोल सकते, फिर आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू बॉडी नहीं दे सकते उसकी। फंक्शनल इंटरफेस की शर्त ही यही है, कंडीशन ही यही है कि आपके इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए देन उसको हम फंक्शनल इंटरफेस बोलेंगे ही नहीं। गॉट इट? फिर उसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट डू दैट। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जहां भी आपको अब माई इंटरफेस एम का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा, माई इंटरफेस का जहां भी आपको रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा वहां क्या लगा सकते हो आप, लैम्डा एक्सप्रेशन लगा लैम्डा सकते हो। एक्सप्रेशन। यहाँ अब आ जाते हैं, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, और आई मीन ये इतना आसान इजी नहीं है समझ आना, बट जिसको समझ आ गया हो इट्स अ गुड। इस पर वी विल डिस्कस अ लॉट ऑन इट। ओके, तो जावा 8 में आप अगर देखोगे पूरा कोड लिखने का तरीका ही बदल दिया है इसने। फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग करते हैं इसके अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा फंक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन को हम मेथड के आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं, यू नो, एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड। हमने जो अभी लिया था यहाँ पे एरेलिस्ट डेमो, इसमें देखो आप क्या किया हुआ है, ये फॉर ईच क्या है, मेथड, और ये क्या है इसका आर्गुमेंट है। आप देखो ना कि मेथड के आर्गुमेंट के अंदर, अगर मैं इसको एक लाइन में कर दूं, यहाँ पे एक ही लाइन में है जनरली है, ये मैं समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। एक मेथड के आर्गुमेंट में मैंने पूरा इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग। जावा 1.8 जावा फ्रॉम जावा 8 इट स्टार्ट सपोर्टिंग द फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग, कि जिसमें क्या कर रहे हैं, पूरा फंक्शंस को हम उसको एज अ आर्गुमेंट पास कर दे रहे हैं। ओके, एज अ आर्गुमेंट भी पासिंग। तो जब भी आपको कोई लैम्डा फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा, आप उसकी लैम्डा एक्सप्रेशन उसकी जगह पे आप लगा दोगे। इजिली वी कैन पुट द लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, easily we can use the lambda expression. Okay, so easily we can use the lambda expression whenever we will get the reference variable of functional interface. तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मैं कहीं भी कोई अगर ऐसा मैं मेथड ले रहा हूँ, यू नो, कहीं भी मैं ऐसा मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, और जहाँ पे आपका फंक्शनल इंटरफेस टाइप का कोई वेरिएबल है, ओके, तो वहां पे अब मैं आसानी से क्या लगा सकता हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ। और लैम्डा एक्सप्रेशन लगाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं उसकी बॉडी दे रहा हूँ। आई एम गिविंग द बॉडी ऑफ दैट मेथड, आई एम गिविंग द बॉडी ऑफ दैट मेथड। सर इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। लेट मी ट्राई टू क्रिएट वन एग्जांपल हियर। ये मेरी टेस्ट क्लास है। ओके, दिस इज द टेस्ट क्लास। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देता हूँ यहाँ पे। टेस्ट क्लास के अंदर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट वन मेथड। मैं यहाँ पे एक मेथड आई मीन आई एम जस्ट नो ओके, आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ मेथड हियर। लेकिन जहां भी अगर मुझे उसे यूज करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई मेथड्स का मेरे को यहाँ पे बॉडी देनी है, आई वांट टू गिव दी बॉडी ऑफ दैट मेथड। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई मेथड लिख रहा हूँ, लेट मी राइट हियर वन मेथड हियर। ओके, लेटर आई विल डिस्कस, अदरवाइज इट विल मेक अस लिटिल बिट कंफ्यूज। उसमें हम लोग डिटेल में आएंगे। जस्ट अभी मैं क्या सोच रहा था, मैं चाह रहा था कि ऐसा ही सिनेरियो में क्रिएट करूं। आप फॉर ईच के अंदर जाओगे, फॉर ईच के अंदर आप देखोगे गाइस क्या है, कंज्यूमर टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है फॉर ईच के अंदर। फॉर ईच के अंदर कंज्यूमर टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है, और वो रेफरेंस जो कंज्यूमर है वो अपने आप में फंक्शनल इंटरफेस है। तो एक्चुअल में बॉडी हमने किस मेथड की दी है, एक्सेप्ट मेथड। ब्यूटी इसकी ये है, इसका ब्यूटी इसकी ये है कि यहाँ पे देखोगे तो
उस एक्सेप्ट मेथड का नाम भी यूज नहीं किया हमने, वी डिड नॉट यूज द नेम ऑफ इट। ओके, ये इसकी। लेकिन अर्लियर क्या ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं था? 1.7 तक क्या होते नहीं थे फंक्शनल इंटरफेस? द आंसर इज यस, होते थे। लेकिन उनको कभी ऑफिशियली ऐसे टर्म नहीं दिया कि इनको हम फंक्शनल इंटरफेस बोलेंगे। तो फिर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते थे? तो इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके थे। आइदर हम उनको ऐसे इम्प्लीमेंट कर लें, जो अभी मैंने लगाया था इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके, मैंने आपको बताया कि ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड वे है कि आप उसको अनोनिमस क्लास का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। किसी भी फंक्शनल इंटरफेस को आप अनोनिमस क्लास का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब वो अनोनिमस क्लास थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती थी, प्लस उसमें एक और एक्स्ट्रा डॉट क्लास फाइल बनती थी, उसका ये अल्टरनेट है लैम्डा एक्सप्रेशन। ये आपका क्या है? इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस एंड अपार्ट फ्रॉम इट इज अ अल्टरनेटिव वे ऑफ अनोनिमस क्लास। ओके, तो अनोनिमस क्लास का बेसिकली क्या है? ये इम्प्लीमेंटेशन। तो अर्लियर हम लोग फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से दे सकते थे। अभी हमने जब यहाँ देखा था तो एक ही तरीका देखा था। अभी आई थिंक ये एडवांस हम देख चुके हैं। इसको मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, आई एम रिमूविंग इट। तो एक तरीका क्या है, मुझे अगर इस माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो वन वे क्या है कि मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर लूँ। ओके, ये इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर लूँ और उस मेथड को क्या कर दूं, यहाँ पे मैं ओवरराइड कर लूं। कौन से मेथड को? मेथड का नाम क्या है? पब्लिक वॉइड M1 m1, पब्लिक वॉइड m1, सॉरी। और इस मेथड को अभी एरर क्यों दे रहा है आप लोग बता सकते हो? सर ओवरराइट नहीं की है। अभी किया तो है हमने, देखो। फंक्शनल इंटरफेस ओवर वो लगा हुआ है ना एनोटेशन सर उसको। उससे सर क्या बॉडी मतलब? नहीं है, बॉडी देनी बॉडी पड़ेगी। दे तो दी मैंने, ये देखो जरा, दे ये दी। बॉडी तो है। नहीं इसी सर, की फॉर body है। ईच की एडवांस फॉर ईच फंक्शनल की पड़ी है। इंटरफेस एनोटेशन लगा हुआ है इसमें सर, तो इसको ये इम्प्लीमेंट्स नहीं कहाँ कर से लग सकते। गया? क्योंकि प्रॉब्लम सर ये है, एक्सेसिबिलिटी सर। नहीं उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखो ना, इसका क्या है ये, व्हाट इज दिस? हाँ सर, स्ट्रिंग टाइप, यस सर, आर्गुमेंट। सिंगल पैरामीटर है ना, हो गया, इसका आर्गुमेंट हो आर्गुमेंट गया। तो मुझे यहाँ पैरामीटर क्या करना होगा? देना। पास करना होगा। यहाँ भी देना होगा स्ट्रिंग str दे दूंगा या मैसेज दे दूंगा, एनीथिंग आई कैन गिव। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? str को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब मैं कैसे कॉल करूंगा इसको? अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डॉट करके इस मेथड को कॉल कर लूंगा। ये नॉर्मल वे है कि आप इम्प्लीमेंट करके कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक तरीका और था, ये तो था, ये तो नॉर्मल किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऐसे तो। बट क्वेश्चन ये था कि फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द फंक्शनल इंटरफेस? उसके लिए यूज होती थी क्या गाइस? अनोनिमस क्लास। क्लास विदाउट नेम इज कॉल्ड द अनोनिमस क्लास। सर हाउ टू क्लास जिसका क्रिएट कोई नाम नहीं है, ऐसी क्लास जिसका कोई नाम नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? व्हाट वी कॉल इट? अनोनिमस क्लास। चलिए ट्राई करते हैं, अनोनिमस क्लास के थ्रू इस फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इंटरफेस का नाम क्या है गाइस? माई इंटरफेस m इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, ओके। वेलकम की इसको अभी हम ओवरराइड करते हैं, we'll override it, ओके। सो ओके, तो इसके अंदर कौन सा मेथड है गाइस? सॉरी, माई इंटरफेस के अंदर कौन सा मेथड है? M1। m1। तो मैं उसको क्या कर लूंगा यहाँ पे? आई कैन ओवरराइड इट। सो उस मेथड को क्या कर लिया यहाँ पे? ओवरराइड कर लूंगा मैं, राइट। हाउ आई कैन ओवरराइड? ओवरराइड मेथड क्या? पब्लिक void m1 and here I can give the body of it, str को प्रिंट कर लिया। अब मैं इसे कॉल कैसे करूंगा? how you can call it? सर क्लास नहीं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और डॉट करके मैं इसको, सॉरी
नहीं, how you can call it guys? तो m क्या dot समझ आती है मन? m dot, मैंने पूरा इम्प्लीमेंटेशन को ही एक रेफरेंस करा लिया और यहाँ से मैं मैसेज पास कर दूंगा। ये मैसेज यहाँ से पास हुआ, M1 के अंदर str में गया, str को यहाँ प्रिंट कर दिया। ये पुराना तरीका, दिस वी कॉल इट अनोनिमस क्लास। अब यहाँ पे एक क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है। ये जो मैंने सिलेक्ट किया ये क्या है? एक क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है और उस क्लास को मैंने रेफरेंस करा लिया इंटरफेस के अंदर। अब आप देखो माई इंटरफेस m इक्वल टू न्यू माई इंटरफेस, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या कभी? नहीं नहीं। और ये देखने से तो लग रहा है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, नहीं दिख रहा आप लोगों को, राइट? ये बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस क्लास। ये अनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट है कि अनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इंटरफेस के रेफरेंस में उसको रेफरेंस करा लिया और नाउ एक्चुअली उस रेफरेंस की मदद से उसका इम्प्लीमेंटेशन मेथड कॉल किया। और ये बेसिकली क्या बोलेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया बाय यूजिंग दी अनोनिमस क्लास। अनोनिमस क्लास का यूज करके हमने फंक्शनल इंटरफेस को क्या किया है गाइस? इम्प्लीमेंट किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम? एक तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोड बिकम्स दी कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरा क्या है इसमें कि डॉट क्लास फाइल बनती है। जब इसको कंपाइल करेंगे तो दो डॉट क्लास फाइल बनेगी। एक तो बनेगी इस क्लास की डॉट क्लास फाइल, एक बनेगी आपने जो अनोनिमस क्लास दी है उसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। और वो किस नाम से बनेगी एनोनिमस? अनोनिमस कुछ उसमें शायद अभी उस पर देखेंगे कि किस नाम से जनरेट होगी वो क्लास। कुछ डॉलर ऑर्डर करके इसमें सिंबल यूज करके वो क्रिएट कर लेती है ना, क्योंकि है तो इनर ही क्लास होगी एक तरीके से, राइट? अब इसी को मैं इस इम्प्लीमेंटेशन को मैं कैसे देता हूँ? फंक्शनल इंटरफेस का यूज करके इसी का इम्प्लीमेंटेशन में देता हूँ जो एडवांस जावा 1.8 में आया है। ठीक है, इंटरफेस और M2, मैंने यहाँ पे M2 दे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई इंटरफेस इक्वल टू, और अब इसी को मैं इम्प्लीमेंट कैसे दे रहा हूँ? लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके। ठीक है गाइस, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके अगर मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन देना है, यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। हियर जस्ट आई एम प्रिंटिंग, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप लोगों को बस हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई। और आप इसको माय इंटरफेस डॉट m1 को कॉल करिए, यहाँ से पास कर दिए आप। गुड मॉर्निंग ऑल। आप बताइए कोड इससे, ये जो दिख रहा है ना, इससे आपका ये सरल है, आपका ये कोड इजी है। ओके, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है और अर्लियर हम देते थे इसका इम्प्लीमेंटेशन थ्रू दी अनोनिमस क्लास। अनोनिमस क्लास में एक तो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्लस इसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। इस केस में कोई डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी और कोड भी आपका एक ही लाइन में है ये सब कुछ। हालांकि वहां भी कोड एक ही लाइन में, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगा रहे हैं, बट इट क्वाइट मेक्स अस कंफ्यूज कि ऐसा लग रहा है जैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा हो। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है क्योंकि उसमें रेफरेंस करा रहा है। दिस इज अ वे, आई मीन टू डू ट्रेडिशनल वे ये था अनोनिमस क्लास का यूज करके। आई नो कि ये आपको लोगों को एक बार में नहीं समझ पड़ रहा हो कि क्या कोड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बट दिस वाज द वे टू डू दैट। अब इसका इन्होंने अल्टरनेटिव वे दे दिया कि आप इसको लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके यहाँ से जो दिख रहा है ना सर, हाँ, तो इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, वहां पे भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है ना, ये भी रेफरेंस कर रहे हैं इसमें। हाँ, इसी में भी इसको रेफरेंस ही करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इंटरफेस का कभी नहीं बनता, जस्ट नो रिमेम्बर दिस, कभी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ जस्ट हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी और उसको रेफरेंस करा लिया एक रेफरेंस वेरिएबल में। नाउ थ्रू द डॉट वी आर गोइंग टू कॉल दिस m1 मेथड। मतलब इंटरफेस टाइप का वेरिएबल हो सकता है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। रेफरेंस टाइप का वेरिएबल हो सकता है और वो इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट रख सकता है, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता। खुद का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं उसका। ओके,
इंटरफेस टाइप का आप रख सकते हो, इंटरफेस टाइप का वो इंटरफेस के रेफरेंस में इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। अब दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड दी कि ये कैसे मैजिक हो रहा है, आई मीन हाउ दिस इज हैपनिंग। ये जो हमने यहाँ पे फॉर ईच यूज कर लिया ना, वी यूज हियर ना दिस फॉर ईच, ये एक्चुअल में क्या किया हमने यहाँ पे, यहाँ से जो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है किसका, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको इम्प्लीमेंट किया है बाय यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन। और ये जो पूरी जो एक्सप्रेशन है, पूरी जो बॉडी है, ये मैंने फॉर ईच मेथड के आर्गुमेंट के अंदर पास कर दिया। इसी को बोलते हैं फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग। जावा 1.8 सपोर्ट फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग। तो ये आपको बहुत जगह इस तरह की लैम्डा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। जहां भी आपको फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा वहां आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लो, यू कैन गिव द इम्प्लीमेंटेशन। इसकी ब्यूटी क्या है, वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट मेथड बट स्टिल वी आर गेटिंग द टेकिंग आई मीन एंजॉयिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। ओके, और हम इसको यूज करने वाले हैं किसी भी कलेक्शन को इटरेट करने के लिए, बी अबाउट टू यूज दिस फॉर ईच। ओके, जावा 8 के फीचर हम लोग वील स्टार्ट क्लास टू कंप्लीट दी जावा 8 के जो फीचर्स हैं, जावा 8 में जो फीचर्स आए हुए हैं उनके लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम लोग इन दी डिटेल वी विल डिस्कस व्हाट इज फंक्शन